Assalamu alaikum. Today we are going to discuss validation and reliability of a questionnaire or a tool or you can say a scale if you're working with scales. So starting with the validation, first of all, developing a questionnaire means we have the information about variables. Understanding the variables is the basic thing before developing a questionnaire. Variables, I will be covering variables in another video, but here just to give you an example, any attribute or characteristic that can change forms, that can have two or more forms. These attributes and characteristics are called variables. To vary, variable is from the root word vary. So, operationalizing the variable is very important when we talk about certain variables or attributes or characteristics in which we cannot answer them with just one question. For example, if I say, assess the knowledge of these students. So you cannot assess the knowledge just with one question, whether and decide that this person is knowledgeable or not, or the person is having good, average, or poor knowledge. So to get an understanding, or we operationalize the variable. So knowledge can be operationalized by asking a set of questions, for example, 15, 20 questions, covering all the aspects of the knowledge related to that specific disease or specific health related event. And then you try to group those questions, um, and uh, take the opinion of the expert to know whether all aspects are covered in this questionnaire regarding this disease or not. So in that way, you can rate those questions, or those questions could be in yes or no answer, like a checklist, or they can be on a rating scale. For example, 0 means each question can have 0, no knowledge, till 5, or till 10. That 10 or 5 is the maximum knowledge. Okay, so you can have a minimum score. If you have 10 question, a set of 10 questions of knowledge on knowledge, then there is a minimum score, that is 0 if you're giving 0, starting with 0. But if you're starting with 1 to 5, you're rating each question, then the minimum score will be 10. Okay, in that case, minimum will be 10 and maximum will be 50. So you can have values between 10 and 50. But if you take 0, and then you can have value from 0 to 50. Or if you are rating it, each question you are rating till 10, then you can have a value of 0 till 100. So here you need to develop a cutoff, or at least you need to categorize. For example, if I say 50% questions are answered incorrectly, or there is agreement with 50% positive statements, then it means the person is knowledgeable. If it's less than 50, the person has poor knowledge. Okay, and again, a third category I can add: if the person has more than 80% correct answers, or 80% agreement, then it means he is having a very good knowledge, excellent knowledge. Okay, so in that way we can characterize, or we can set our cutoffs. So when we operationalize the variable, here comes when we make a questionnaire or a tool, then we need to check the validity of the questionnaire, or a tool, and then the reliability as well. So why we need to validate a questionnaire? First of all, to ensure the tool accurately measures what it's intended to measure. जो वो मैयर करना चाहता है, वो टूल वही मैयर करे. इट मीन्स द ऑब्जेक्टिव क्या था, कि उसने क्या मैयर करना है. और फॉर एग्जांपल इलिटरेसी, लिटरेसी मैयर करनी है, और देखना यह है, या कोई वीनिंग प्रैक्टिसेस मैयर करनी है, तो वो टूल इस तरह का हो जिससे कि वीनिंग प्रैक्टिसेस ही मैयर की जाएं, और एक्यूरेटली पता चल सके कि विच मदर्स दे आर प्रैक्टिसिंग प्रॉपर वीनिंग, और विच मदर्स आर नॉट एक्चुअली practicing correct weaning, or maintaining the quality of weaning food. Okay, so accurately
Tools are questionnaires and tools are those forms in which we are actually operationalizing the variable. There are multiple questions addressing one variable. In that case, we need to know the validity of that tool. Then to build trust in the findings based on the questionnaire, that is the second one, second point. And the third one is to improve generalizability and scientific rigor. By improving generalizability, we mean that we can apply that tool to any population uh, of belonging to the fulfilling the same eligibility criteria. So we can generalize the finding. This tool, we can apply this tool to other population as well. And there is scientific rigor. If when we get it validated, it means it is scientifically sound now. एक अच्छा एक बेहतरीन टूल जो कि साइंटिफिकली टेस्टेड हो गया है वो बन गया है ठीक है So the key concept are validity and reliability while designing a questionnaire. Validity means accuracy. Are we measuring the right concept? The concept that we are actually asked to test. यानी जो हमें मेजर करने के लिए कहा गया था जो हमारा ऑब्जेक्टिव था क्या हमारा क्वेश्चनर वो ही मेजर कर रहा है ओके एंड रिलायबिलिटी इज कंसिस्टेंसी और यू कैन से इट इज रिपीटेबिलिटी ये चीज़ रिपीट हो रही है अगर आप एक ही क्वेश्चनर दोबारा रिपीट करते हो चाहे आप खुद रिपीट करो और यू कैन आस्क सम अदर पर्सन टू गेट इट रिपीटेड कि किसी इस पॉपुलेशन पे उसको रिपीट करे पॉपुलेशन बदले या बंदा बदल जाए उसको करने वाला तो वो कंसिस्टेंट रिजल्ट ही दे यानी वो इट मीन्स वो रिलायबल है रिपीटेबिलिटी इज रिलायबिलिटी ठीक है 19-20 के फर्क से उसको सेम रिजल्ट देना चाहिए आर रिजल्ट स्टेबल ओवर टाइम और अक्रॉस रेटर्स इंटर रेटर रिलायबिलिटी अभी हम आगे रिलायबिलिटी की टाइप्स देखेंगे अब हम बात कर रहे हैं कि वैलिडिटी की टाइप्स क्या हैं वैलिडिटी एक्यूरेसी और प्रिसिजन इट हैज़ 4 कॉमन टाइप्स जो हम यूज़ करते हैं फेस वैलिडिटी के देखने में वो कैसा लग रहा है और फेस वैलिडिटी आप क्वेश्चनर की देख सकते हैं आप कोई क्वेश्चन पेपर आपके पास आया है वो भी आपको देखने से पता चल जाता है कि ये इसकी फेस वैलिडिटी क्या है क्या देखने में ये लग रहा है कि जिस लिए ये बना है लाइक 4th ईयर स्टूडेंट के लिए बना है तो 4th ईयर के स्टूडेंट को कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवा रहा है या पब्लिक हेल्थ का पेपर है तो पब्लिक हेल्थ के उसकी ही क्वेश्चन लग रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ ही का पेपर है देखने में ये तो नहीं लग रहा कि ये पैथोलॉजी का पेपर है फेस वैलिडिटी देखने में जो आपको उसको नजर आ रहा है कि वो वही मेजर कर रहा है जिसके लिए वो बना है इन कंटेंट वैलिडिटी एक्चुअली इसमें आप डिटेल में कंटेंट को देखते हैं और इसके लिए आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट चाहिए होता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट वो आपको बताएगा कि इसका कंटेंट प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड ये हुआ कि नहीं इसमें सारा कंटेंट इंक्लूड हुआ कि नहीं इस पेपर में या इस क्वेश्चनर के अंदर फॉर एग्जांपल आप नॉलेज असेस कर रहे हो डेंगू के नॉलेज के हम एग्जांपल ले लेते हैं तो डेंगू की एजेंट क्या है उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस क्या है उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है उसके वेक्टर कौन सा इन्वॉल्व होता है उसकी प्रोग्नोसिस क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंगू फीवर क्या है और इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है और इसका डिफरेंट आप प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं तो ये इतने सारे एस्पेक्ट हैं जिन सब का नॉलेज होना चाहिए तो अगर हम किसी को कहें कि उसको डेंगू का नॉलेज है इट मीन्स कि वो तमाम एस्पेक्ट उसके कवर हो गए हैं तो हमारी कंटेंट वैलिडिटी चाहे वो पेपर की हो चाहे वो आपके क्वेश्चनर की हो आपका क्वेश्चनर हेल्थ लिटरेसी असेस करना चाहता है तो हेल्थ लिटरेसी के तमाम एस्पेक्ट कवर हुए हैं कि नहीं तो ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट बड़ी आसानी से देख के बता सकता है कि दिस क्वेश्चनर इज वैलिड इन टर्म्स ऑफ इट्स कंटेंट और नॉट ठीक है अगली आ जाती है हमारे पास टाइप दैट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी डज इट ट्रूली मेजर्स द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो उसको मेजर कर रहा है कि नहीं आपका एक क्वेश्चनर अगर हम WHO का एग्जांपल लेते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनर हम यूज करते हैं तो वो हमें वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड है क्वालिटी ऑफ लाइफ को असेस करने के लिए कि नहीं ठीक है और उसकी कंस्ट्रक्ट ठीक है कि नहीं तमाम हिस्सों को बराबर इक्वल दिया गया है वेटेज के नहीं ये तो नहीं कि सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ में फिजिकल क्वालिटी को बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चंस दे दिए गए हैं साइकोलॉजिकल क्वालिटी को बहुत थोड़े दे दिए गए हैं तो वो उसका कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है कि कौन सा फैक्टर कौन सा इम्पोर्टेंट था और उसको कितनी इंपॉर्टेंस दी गई ठीक है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के लिए वी हैव स्टैटिस्टिकल टूल एज वेल
अब आ जाते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी, डज इट कोरिलेट विद एन एक्सटर्नल गोल्ड स्टैंडर्ड। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्राइटेरियन वैलिडिटी में हम एग्जांपल WHO के क्वालिटी ऑफ लाइफ ब्रीफ क्वेश्चनर उनका है, BREF ब्रेफ के नाम से ना, और इसमें बहुत कम क्वेश्चंस हैं एज कम्पेयर टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो डिटेल्ड क्वेश्चन है WHO का। इसकी टू एस्टैब्लिश क्राइटेरिया ऑन वैलिडिटी यू कंपेयर WHO कॉल ब्रीफ स्कोर्स विद अनदर एस्टैब्लिश्ड मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं SF36 हेल्थ सर्वे विच इज़ वाइडली वैलिडेटेड। वाइडली वैलिडेटेड का मतलब है बहुत सारी पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट हो चुका है, वैलिडेट हो चुका है, और उसको हम कंपेयर करते हैं WHO के क्वेश्चनर को सेम पॉपुलेशन पे अप्लाई करके, सेम ग्रुप ऑफ पेशेंट पे अप्लाई करके हम दोनों को कोरिलेट करते हैं, उनके स्कोर्स को जो हमारे पास आते हैं, और इसमें हम फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, जो हम आगे थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी। सो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं विद अ वैलिड क्राइटेरियन, ठीक है, एक्सटर्नल हमने एक यूज किया जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। सो टाइप रिलायबिलिटी, व्हाट इज रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी इज रिपीटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, और इसमें हम मेजर करते हैं कॉमनली इंटरनल कंसिस्टेंसी, जिसे हम क्रॉनबेक अल्फा से मेजर करते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी मींस के क्वेश्चंस की तमाम क्वेश्चंस जो उसके अंदर हैं वो भी कंसिस्टेंटली एक ही डायरेक्शन में एक ही चीज़ को मेजर कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो बने हैं वो उसी को मेजर कर रहे हैं, और उनकी फाइंडिंग्स भी, उनकी स्कोरिंग भी कंसिस्टेंट आ रही है, ठीक है। और ये हम रिलायबिलिटी तब हमें पता चलती है जब हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं, उसको हम सेल्फ एडमिनिस्टर करें क्वेश्चनर को या इंटरव्यूअर एडमिनिस्टर्ड हो। सेल्फ एडमिनिस्टर करने का मतलब है कि पेशेंट और अटेंडेंट या आपकी जो पॉपुलेशन के, आपके जो सैंपल के पार्टिसिपेंट हैं वो खुद इसको फिल करें, उसको कहते हैं सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनर। जब हम क्वेश्चनर खुद फिल करते हैं तो वो इंटरव्यूअर एडमिनिस्टर्ड होता है, हम सवाल पूछते जाते हैं और उसको फिल करते जाते हैं, ठीक है। सो हम इंटरनल कंसिस्टेंसी देखते हैं कि जब ये फिल होके आ गया तो उस एक सवाल को किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। 30 पार्टिसिपेंट थे, 30 पार्टिसिपेंट ने उस पर किस तरह से रिस्पॉन्स दिया। इसी तरह हमारे पास उसकी फिर हम क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देन वी हैव टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम स्टेबिलिटी मेजर करते हैं ओवर टाइम, के टेस्ट आज हमने टेस्ट लिया और फिर इसी पॉपुलेशन पे मैंने 1 महीने बाद टेस्ट लिया, तो मेरी उसमें बेहतरी आनी चाहिए ना, इट शुड रिपीटेबिलिटी, उसमें वो दोबारा से उसी तरह परफॉर्म करें या उससे बेहतर परफॉर्म करें। सो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ओवर टाइम हम इसे कहेंगे। और इंटर रेटर रिलायबिलिटी, यानी एक से ज़्यादा लोग अगर एडमिनिस्टर करें, जैसे हम 2-3 रिसर्च टीम्स बनाते हैं, एक रिसर्च टीम उसी पॉपुलेशन में जाती है, दूसरी भी उसी में जा रही है, अब उसमें इंटर रेटर रिलायबिलिटी होनी चाहिए। अगर सेम पॉपुलेशन पे सेम घरों में 2 लोग गए हैं डिफरेंट टाइम पे, तो उनमें भी एक ही जैसी फाइंडिंग्स आनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए फाइंडिंग। सो इसको कहते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी। और एक अच्छी एग्जांपल हम पेपर की लेते हैं। जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, पेपर चेकर जो है, अगर एक को मैं देती हूँ वही पेपर चेक करने, तो वो उसमें आपको पास कर देता है, दूसरे को देती हूँ वो फेल कर देता है, इट मीन्स इंटर रेटर रिलायबिलिटी नहीं है, एग्रीमेंट बिटवीन ऑब्जर्वर्स, ठीक है। और फिर लास्ट टाइप इसकी है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, कि हम कंसिस्टेंसी बिटवीन 2 हाफ्स देखते हैं। हम डेटा को दो, आप क्वेश्चनर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ऑड और इवन अलग कर देते हैं क्वेश्चन, और उनमें स्कोर निकाल लेते हैं, फिर स्कोर को कोरिलेट कर लेते हैं, और इसको स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, कि वो भी हमें कंसिस्टेंट मिलना चाहिए। और इसमें हम ये भी, इसकी एग्जांपल मैंने इस तरह की, जैसे 10 आइटम क्वेश्चनर हमने लिया, उसको 2 सेट्स बना लिए। एक पार्ट ए था जिसमें कि हमने इवन नंबर ले लिए, पार्ट बी में हमने ऑड नंबर ले लिए, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल स्कोर ऑफ ईच हाफ फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड देन कंप्यूट द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी scores. Use the Spearman-Brown prophecy formula to adjust the split half reliability, and if R is more than 0.75 then it indicates good internal consistency, कि ये दोनों हाफ, इसको स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी भी हमें इंटरनल कंसिस्टेंसी ही शो कर रही है, ठीक है। So now steps to validate a questionnaire. We have to define the construct, then draft items using theory and literature, expert review for phase or content validity, पायलट टेस्ट विद टारगेट पॉपुलेशन, परफॉर्म आइटम एनालिसिस। जब आप पायलट टेस्ट कर लेते हैं, आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं, तो फिर आप आइटम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं।
स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन करते हैं जिसमें हम फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चनर में जो हमने फैक्टर्स पूछे थे या जो हमने उसमें क्वेश्चंस पूछे थे, जो एस्पेक्ट कवर किए थे, हम उनका एनालिसिस रन करते हैं, ठीक है। और फिर हम उसकी रिलायबिलिटी क्रॉनबेक अल्फा अप्लाई करके रिलायबिलिटी असेस कर लेते हैं। कंटेंट वैलिडिटी जो इंश्योर करने के लिए वी यूज एक्सपर्ट्स टू रेट ईच आइटम फॉर रेलेवेंस। आइटम लेवल जो वैलिडिटी होती है, आइटम लेवल CVI is a proportion of experts agreeing item is relevant। यानी हर आइटम मीन्स हर स्टेटमेंट या हर जो उसका एस्पेक्ट कवर हो रहा है नॉलेज का, उस एक स्टेटमेंट को हम आइटम कह रहे हैं। तो हर आइटम की हम देखते हैं कि 2-3 एक्सपर्ट ने अगर उसको देखा, 3 लोगों ने फॉर एग्जांपल देखा, तो उसकी प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपर्ट्स जो इस आइटम के साथ एग्री कर रहे हैं वो कितनी है कि ये आइटम रेलेवेंट है या नहीं। रेलेवेंस मीन कि जो उस ऑब्जेक्टिव के साथ रेलेवेंट है, उस थीम जो आप जिसके ऊपर आपने ये क्वेश्चनर बनाया उसके साथ रेलेवेंट है, उस पॉपुलेशन जिस पे काम हो रहा है उससे रेलेवेंट है। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ज़्यादा टारगेट हम करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के साथ रेलेवेंस इसकी बन रही है कि नहीं। तो इफ़ द आइटम इज़ रेलेवेंट दैन इट मीन्स कि हमने उसको उसमें इंक्लूड करना है। इट मीन्स के एक्सपर्ट्स में की प्रोपोर्शन अगर 0.78 से ज़्यादा उसकी रेलेवेंस शो कर रही है, इट मीन्स के हम उसको आइटम को रखेंगे। अगर 0.78 से कम होगी तो हम उस आइटम को रिवाइज करेंगे, चेंज करेंगे या निकाल देंगे, ठीक है। सो स्केल लेवल जो हम कंटेंट वैलिडिटी होती है उसमें हम एवरेज CVI अक्रॉस ऑल आइटम्स लिखते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए ना। और इसमें हम जो 0.8 का रखते हैं कि 0.8 से ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। सो ये ऑल आइटम्स के क्रॉस हम उसका एवरेज लेते हैं। तो इसमें हम देख के कि जो आइटम्स हमारा ओवरऑल जो स्केल है वो इस काबिल है कि इसको हम आगे एडमिनिस्टर करें या पॉपुलेशन के ऊपर रन करें कि नहीं, ठीक है। तो पायलट से हमें आइटम लेवल वैलिडिटी भी पता चल रही है, कंटेंट वैलिडिटी, और हमें स्केल लेवल भी यानी पूरे के पूरे क्वेश्चनर की भी पता चल रही है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस आइडेंटिफाइज अंडरलाइंग फैक्टर स्ट्रक्चर, जो कि हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में मैंने आपको बताया था कि हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं जिससे हमें अंडरलाइंग फैक्टर स्ट्रक्चर पता चलता है कि इसमें कौन कौन से हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये कौन से फैक्टर्स इसके अंदर हैं। कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि हम टेस्ट करें फिट ऑफ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। ये टेस्ट करता है फिट ऑफ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, यानी आपने एक अंडरलाइन फैक्टर का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप किसी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर के ऊपर उसको फिट इन करते हैं। कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस पर हम उस पर रन कर लेते हैं। फिर हमारे पास बार्टलेट्स टेस्ट होता है जो कि हमें एडिक्वेसी मेजर करने के लिए, इस तरह KMO होता है। सो इसके ऊपर सेपरेट मैं वीडियो करूंगी इंशाल्लाह। रिलायबिलिटी टेस्टिंग के लिए क्रॉनबेक अल्फा जो हमें इंटरनल कंसिस्टेंसी बताता है बिटवीन द क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली, वो वही चीज़ मेजर कर रहे हैं, उनकी रिपीटिव और उनके बीच में जो रिपीट हो रहा है ना, एक के बाद दूसरा आ रहा है, उसको कंसिस्टेंसी इज रिलायबिलिटी ना। तो इंटरनल रिलायबिलिटी हम उसको मेजर कर रहे हैं। इसमें 0.7 से ज़्यादा अगर हमारी उसका स्कोर आता है क्रॉनबेक अल्फा का, दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये 1 से नीचे होता है इसका स्कोर, 1 और लेस देन 1 होता है। तो इसमें 0.7 से ज़्यादा को वी कंसिडर इट एज इंटरनली कंसिस्टेंट क्वेश्चनर। ओके, नाउ टेस्ट रीटेस्ट कोरिलेशन भी हम कर सकते हैं, पियर्सन और स्पीरमैन हम यूज करते हैं, और इसमें भी 0.7 से ज़्यादा मीन्स गुड रिलायबिलिटी। So you can have a test retest correlation and you can have Cronbach alpha टेस्ट रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए। और हमने पीछे जो वैलिडिटी टेस्टिंग के लिए फैक्टर एनालिसिस एक्सप्लोरेटरी एंड कंफर्मेटरी दोनों हमने यूज किए थे। इसके अलावा रिलायबिलिटी के अंदर हम इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट भी यूज कर सकते हैं जो इंटर रेटर एग्रीमेंट को, इंटर रेटर रिलायबिलिटी को शो करता है। तो ये कुछ रिलायबिलिटी के टेस्ट हैं जो हम यूज कर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ वैलिड टूल, एक तो एक क्लियर कंस्ट्रक्ट डेफिनेशन हो, ठीक है, कि क्या कंस्ट्रक्ट बन रहा है और उसके अंदर क्या थीम्स यूज किए जा रहे हैं।
एक्सपर्ट वेरीफाइड कंटेंट वैलिडिटी हो, इंटरनल कंसिस्टेंसी क्रॉनबेक अल्फा इज इक्वल टू और मोर देन 0.7 हो, पायलट टेस्टेड विद अप्रोप्रिएट सैंपल साइज किया गया हो, दैट इज मोर देन 5 to 10 पार्टिसिपेंट पर आइटम आपने टेस्ट किया हो। ये ना हो कि एक क्वेश्चन का जवाब सिर्फ 2 या 3 ने दिया हो, कम से कम 5 से 10 पार्टिसिपेंट पर आइटम, तब हम पायलट टेस्टिंग को मानते हैं। यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ कि 30 के करीब या 30 से ज़्यादा आप पायलट करके आएँ, और ताकि हर आइटम के लिए हमें 30 रिस्पॉन्सेज मिले एंड वी कैन रन द टेस्ट। एविडेंस ऑफ फैक्टर स्ट्रक्चर, और इफ़ एप्लीकेबल अगर आप फैक्टर स्ट्रक्चर का एविडेंस आपके पास है लिटरेचर से और आपने उसको बनाते हुए कुछ फैक्टर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो देन यू कैन यूज़ दैट। रिपोर्टिंग वैलिडेशन, जब आपने उसको रिपोर्ट करना है, डिस्क्राइब डेवलपमेंट प्रोसेस, रिपोर्ट सैम्पल डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स कहते हैं एज, जेंडर और उसकी मैरिटल स्टेटस वगैरह, आप उसका जो रिकॉर्ड किया होता है उसको आप रिपोर्ट करते हैं। डिटेल स्टैटिस्टिकल टेस्ट, यूज क्रॉनबेक अल्फा, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस और कंटेंट वैलिडिटी। मेंशन लिमिटेशंस एंड नीड फॉर फ्यूचर वैलिडेशन, ठीक है, इस तरीके से आप उसको रिपोर्ट करते हैं वैलिडिटी को। So conclusion, a validated reliable questionnaire is essential for high quality research. Use multiple methods to assess both validity and reliability. Always report your validation process transparently. एंड वन मोर थिंग, जब आपने इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करना होता है या अपनी लोकल लैंग्वेज में किसी भी क्वेश्चनर को टूल को ट्रांसलेट करना होता है, यू नीड टू रीवैलिडेट इट। पहले तो आप उसकी बायलिंगुअल ट्रांसलेशन करें, बायलिंगुअल एक्सपर्ट के साथ ट्रांसलेशन करवाएं, और इट शुड बी टू वे ट्रांसलेशन। पहले आप उसको इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करवाएं बायलिंगुअल एक्सपर्ट से, फिर उसकी उर्दू किसी और को देख के उससे कहें कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करे, वो भी बायलिंगुअल एक्सपर्ट होना चाहिए, वो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करेगा। देन यू विल कंपेयर दोज टू इंग्लिश वर्जन्स, एक जो ट्रांसलेटेड है और एक जो ओरिजिनल थी, कि ये वही बनी है कि नहीं। इसी तरह आप इसको हम इस प्रोसेस को हम रिपोर्ट करते हैं, जब भी हम लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर वी हैव टू रिपोर्ट कि हमने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कैसे करवाई, और उसके बाद हम उसे उर्दू ट्रांसलेशन को वैलिडेट कर लेते हैं, ठीक है। इट्स a very important step in validation. So thank you very much. These are the references.